immediately unmute and inform me. Hello Elkin, hello Eren. So first of all, what we are going to discuss in this chapter? So in this chapter, we will discuss the two compounds. One is haloalkane, another is haloarene. So we are going to discuss the two compound briefly, completely in this chapter, that is haloalkanes and haloarenes. Now I have divided this chapter in two parts. First, we will discuss haloalkane as I informed you yesterday. So I'm going to start the haloalkane. Haloalkane शुरू करने जा रहे हैं. This time I will just discuss about the haloalkane, not the haloarene. When haloalkane everything will be over, then I will start the haloarene. Now, first of all, the question is there कि what is haloalkane? Haloalkane होता क्या है? How you will identify that this compound is haloalkane? So haloalkane is a compound. पहले ये तो clear है कि haloalkane is a compound. Which type of compound? Organic or inorganic? Then organic compound. Means it must contain carbon and hydrogen. इसमें क्या होगा? Carbon होगा और hydrogen होगा. Now next, remember this. Another name of haloalkane. हैलोएल्केन का जो दूसरा नाम है that is alkyl halide. Another name of haloalkane is alkyl halide. हैलोएल्केन का जो दूसरा नाम है वो है alkyl halide. Another name of haloalkane is alkyl halide. So आपके पास दो नाम आ गया. Either the question will be there which contain the word alkyl halide or the question will contain the haloalkane. दोनों एक ही चीज को कहा जा रहा है. Then what is the difference between these two? Alkyl halide is the common term. Alkyl halide जो है वो कॉमन टर्म के लिए यूज होता है एंड haloalkane जो है ये IUPAC टर्म है. Alkyl halide is common term and haloalkane वर्ड इज IUPAC टर्म. दोनों एक ही चीज के, लेकिन IUPAC टर्म में दैट कंपाउंड इज कॉल्ड haloalkane एंड कॉमन टर्म में वी आर सेइंग alkyl halide. Now as the name is given there alkyl halide, so it is denoted by the formula R. Alkyl is R and halide is X. That X may be fluoro, ब्रोमो और आयोडो. एक्स के जगह पे फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है या आयोडो हो सकता है. सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, दैट इज एल्किल हैलाइड. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? अब डेफिनेशन क्या है इसका? सो डेफिनेशन एज द नेम इज सेइंग हैलो एल्केन. इसका नाम क्या कहा जा रहा है? हैलो एल्केन. एल्केन किसको कहते हैं? दैट यू नो कि एल्केन इज हाइड्रोकार्बन. एल्केन इज हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स फॉर्मूला इज CnH2n+2. इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, CnH2n+2. So when, now listen the definition. When one or more than one hydrogen, जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, when one or more than one hydrogen of alkane, कार्बन नहीं, only hydrogen, when one or more than one hydrogen of alkane, alkane का एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, when one or more than one hydrogen of alkane is replaced or displaced by halogen group. मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हट जाएगा और उसके जगह पे हैलोजन आ जाएगा. सो व्हेन वन, या तो एक और मोर देन वन, एक से ज्यादा चाहे जितना भी हो, व्हेन वन और मोर देन वन
हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, किसी और का नहीं, एल्केन का, बिकॉज नाम में एल्केन है. सो व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन is displaced or replaced by halogen, then the formed compound is called haloalkane. तब जो कंपाउंड बनता है that is called haloalkane, उसको कहा जाता है haloalkane और alkyl halide. यहाँ लिखा हुआ है मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. एल्केन में मोनोहाइलोजन, तो यहाँ बता रहा है केवल एक हाइड्रोजन की बात. यहाँ पे आपके बुक में, इन योर बुक, that is single hydrogen containing compounds are given mostly, that's why it is written monohalogen. ठीक है. सो मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव, बल्कि मोनो हटा करके आप लिख दीजिए हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. मोनो वर्ड मत लिखिए. हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन. नाउ आईयूपीएसी नेम तो आप जानते हैं क्लास 11 से ही कि IUPAC name में if Cl is there then we will write the chloro, if F will be there we will write the fluoro, if Br will be there we will write the bromo, and if I will be there we will write the iodo. So fluoro, chloro, bromo and iodo, these are the IUPAC name of chlorine, fluorine, bromine and iodine. Now see first compound example, haloalkane का example methyl chloride. ठीक है. Then see any organic compound which contain carbon, hydrogen and halogen. अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और हैलोजन है, then that compound is haloalkane और alkyl halide. ठीक है. Now see methyl chloride. Methyl chloride, this name is the common term. alkyl से, alkyl halide से बना है methyl chloride. तो आप पहले लिखेंगे मेथिल मीन्स आप जानते हैं 1 कार्बन इज मेथ, 2 कार्बन इज एथ, 3 कार्बन इज प्रोप, 4 कार्बन इज ब्यूट, 5 कार्बन इज पेंट, 6 कार्बन इज हेक्स, 7 कार्बन इज हेप्ट, 8 कार्बन इज ऑक्ट, 9 कार्बन इज नोन एंड 10 कार्बन इज डेप. ये तो आपको पता है. नाउ सी, सो देयर इज 1 कार्बन. Remember this, many of the students are becomes confused that the Cl contain the carbon, कि Cl में जो C होता है that is carbon. That Cl is not carbon, that Cl is the symbol of chlorine. तो उसको कार्बन नहीं काउंट करते हैं कि इसको काउंट कर लीजिएगा, फिर यहाँ कहिएगा कि सर it is having 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है. So this is not the 2 कार्बन. Cl is the symbol of chlorine, that is not carbon. So it is having 1 कार्बन. 1 कार्बन को आप मीथेन कहते हो, उसमें आके अटैच हो गया क्लोरो. सो आप कैसे लिखोगे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में यू विल राइट दिस, देन आफ्टर बिलो दिस नेम एंड बिलो दिस IUPAC नेम इन ब्रैकेट. इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दैट इज क्लोरोमीथेन. सी IUPAC नेम इसका कहाँ लिखा हुआ है, हियर. सी मेथिल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन. एथिल क्लोराइड, IUPAC नेम ब्रोमो इथेन. देखिए ये वाला टर्म एल्किल हैलाइड के बेसिस पे है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन, देखिए कॉमन नेमिंग एल्किल हैलाइड. एंड ये वाला टर्म जो है ये IUPAC यानी हैलो एल्केन के नाम के बेसिस पे. हैलो पहले हैलोजन का नाम, फिर एल्केन, एल्केन का नाम, दैट्स व्हाई क्लोरोमीथेन. ठीक है. नेक्स्ट and propyl iodide, this is the common name. Now IUPAC name is 1-iodopropane. Next is isopropyl iodide, this is the common name, and IUPAC name is 2-iodopropane. Same is here. And butyl chloride, IUPAC name is 1-chlorobutane. Isobutyl chloride, IUPAC name is 1-chloro-2-methyl propane. Then tert pentyl chloride, common name, IUPAC name is 2-chloro-2-methyl butane. Neopentyl chloride, IUPAC name is 1-chloro-2,2-dimethyl pentane. So now the problem is here, in your examination the question can be given in the form of formula or in the form of common name. या तो क्वेश्चन कॉमन नेम से दिया होगा या फॉर्मूला से, एंड क्वेश्चन विल से कि राइट द IUPAC नेम. So how you will identify
कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, आई एम गिविंग जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन, रेस्ट यू नो फ्रॉम क्लास 11, लाइक मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल मीन्स कंटेनिंग वन कार्बन, एक कार्बन है जिसपे Cl लगा हुआ है, एंड रेस्ट इज हाइड्रोजन, बाकी क्या है, हाइड्रोजन है। सो नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा, तो एक कार्बन की चेन है मेथेन कहेंगे, और क्लोरीन लगा हुआ है तो हो जाएगा क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। Now next, second is here, that is ethyl bromide. Ethyl bromide ऐसे लिखा रहेगा कि एथिल ब्रोमाइड, राइट इट्स IUPAC नेम, इसका IUPAC नाम बताइए। तो एथिल ब्रोमाइड का पहले स्ट्रक्चर बनाइए। एथिल ब्रोमाइड मीन्स टू कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH3CH2 alkyl group, and bromide means Br. Now what will be its IUPAC name? IUPAC name में अब इसमें नंबरिंग करना होगा, as the number of carbon will increase we need to number it, and the first carbon contain bromine, so it will be 1 bromo, it will be 1 bromo, and 2 carbon chain is there, ethane, 1 bromo ethane, 1 bromo ethane, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 bromo ethane। अब बात आया कि इन योर PDF 1 नंबर इज नॉट रिटन। ठीक है, तो 1 नंबर लिखिए चाहे मत लिखिए, इफ नो एनी नंबर इज देयर देन दैट मीन्स 1 position, if 1 is written that means also 1 position। तो whenever any substituent group is present at first carbon, जब substituent first carbon पर present होता है तो उसको नंबर देना कोई essential नहीं होता, it's your, ठीक है, चॉइस कि you need to write the 1 or not। So I have given you 1 bromo ethane, you need, then you don't write the 1 number, 1 number आप लिखिए चाहे मत लिखिए, no matter। 1 के लिए केवल बात हो रही है, बाकी किसी नंबर के लिए नहीं। 2 3 4 5 you need to write, that is essential। Now next, third one, that is n propyl iodide। So what is the meaning of this small n? तो 3 words आपको बताया गया होगा, नॉर्मल, आइसो, नियो, क्लास 10th में भी था, आइसोमर में नॉर्मल, आइसो, नियो। सो स्मॉल n is represent the normal, normal word means है small n is representing a normal word is representing that all the carbons of a compound। Hello, yes, The same problem is faced by Aaron also. He replies to screen problem। नहीं सर, Aaron का वो अटेंडेंस फिर लिख रहा है ना, कभी लिख रहा है रिप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है। wait a minute, Aryan is trying to give his attendance but attendance is not coming here na, सर रेस्ट्रिक्टेड लिख रहा है। restricted। Okay, Aryan, are you able to send anything like a screenshot, something like, are you able to send here or not? No, sir. Reply restricted is shown. Reply restricted, but everyone is giving. Okay, Aryan, Piyush, Yes sir। please do one thing, right here। ठीक है, Aryan, are you able to reply to other student or Sir, Aryan? in chat? In chat, are you are not able to reply anything, no? No, sir. Okay, Piyush, please write here, Aryan present 16 जुलाई, बस इतना लिख के आप भेज दीजिए। एंड Aryan, if you want to ask anything, please immediately unmute। ठीक है, unmute and Okay, ask। जिसको कुछ भी पूछना है unmute करके आप पूछ लीजिए। Piyush, please send here message, Aryan present 16 July, just write this and send in chat box। Okay, thank you Piyush। If any other have this type of problem, please inform me, so I will ask to Akhilesh sir ki what is the problem there। So now remember, anyone have any doubt, any confusion, immediately unmute and ask। And
नॉर्मल वर्ड में समझ जाइए, नॉर्मल, दिस विल कम फॉर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। सो रिमेंबर दिस कि अब आगे किसी चैप्टर में अगर इस तरह स्मॉल एन लिखा हुआ है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हेनेवर द स्मॉल एन इज रिटन इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड नॉर्मल, it is pronounced as N propyl iodide or normal propyl iodide. So what is the meaning of N? What is representing N here? N is representing that all the carbon of that Your voice is coming slow. wait. Now, Yes, sir. it is clear or same? Yes, sir. Clear. Okay, thank you. So normal word means small n means all the carbons are present or attached back to back in straight chain form. No any side chain carbon is there. इसका मतलब ये बताता है कि that all the carbon, जितने भी कार्बन उसमें लिखे हुए हैं, like propyl means 3 carbon, butyl means 4 carbon, pentyl means 5 carbon, hexyl means 6 carbon. So whatever number of carbon is there, all the carbons are present in straight chain form, means all the carbons are attached back to back. No any side chain is there, उसमें कोई side chain नहीं है। रिमेंबर दिस, तो एन का मतलब ये होता है। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब एन प्रोपिल आयोडाइड का मतलब है, प्रोपिल इज इन्फॉर्मिंग यू कि इट इज 3 कार्बन चेन। प्रोपिल आपको बता रहा है कि 3 कार्बन की चेन है, and N is representing all the carbon are straight chain, so all the carbons are attached back to back, and iodide is written, no any position is written कि वो second है, third है, या first है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। So it means it is at the first place, so either this side, नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर आई अटैच कर दीजिए और लेफ्ट साइड, और मे बी इफ यू वांट टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड देन राइट हियर राइट साइड, किसी एक साइड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर यू विल ऐड द आई। सो 1 2 3। नाउ व्हाट इज इट्स आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सो फर्स्ट नंबर पे आयोडो है, आईयूपीएसी नेम में पहले हेलोजन का नाम लिखा जाता है। सो 1 आयोडो एंड 3 कार्बन की चेन है, सो दैट इज प्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन, और यू कैन ओनली राइट आयोडोप्रोपेन, या तो 1 आयोडोप्रोपेन कहिए या केवल कहिए आयोडोप्रोपेन। इट इज हियर 1 आयोडोप्रोपेन और आयोडोप्रोपेन। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, तो 1 इज, इट इज योर चॉइस कि आप लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं। एंड अनदर मे बी some teacher will inform you कि whenever the 2 carbon is there then no need of writing the number। जब 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, केवल 2 कार्बन का, लाइक इथेन, मीथेन में तो एक ही कार्बन है उसी पर रहेगा, इथेन में 2 कार्बन का कंपाउंड है तो या तो इस पर रहेगा या तो इस पर रहेगा, किसी एक पर रहेगा, तो जिस पर रहेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 के लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर पे है देन यू नीड टू राइट एट पोजीशन। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एन, कि एन का मतलब क्या, भी आगे भी आएगा। नेक्स्ट वन इज आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो आइसोप्रोपिल यहाँ कर दिया, आइसो वर्ड मीन्स 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन और 2 कार्बन एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन, कोई एक कार्बन, एनी 1 कार्बन इन द चेन, पूरे चेन में कोई भी एक कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कोई भी एक कार्बन, एनी 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन एंड 1 कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन सारे कार्बन पे होता है, या तो 2 साइड से कार्बन से और तीसरे साइड से भी कार्बन से, मींस ऑल 3 साइड इज कार्बन अटैच्ड, और मे बी 2 साइड इज कार्बन अटैच्ड एंड 1 साइड इज एनी सब्स्टिट्यूएंट लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या
आयोडो, देन दैट इज कॉल्ड आइसो, उसको हम कहते हैं आइसो। तो जैसे ही आइसो वर्ड आया मतलब आपको समझ जाना है कि एनी वन कार्बन इज सराउंडेड बाय आइदर 3 कार्बन और 2 कार्बन एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। चेन इज प्रोपिल, चेन 3 कार्बन की बनी ही हुई है। 3 कार्बन की अगर चेन देखते हैं तो ये इस तरह बनेगा जिसमें 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा कि 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, बिकॉज कार्बन टोटल 3 है ही। So here the second condition will be there कि 1 carbon is surrounded by 2 carbon and 1 substituent, and that substituent will be iodide। वो substituent क्या होगा? आयोडाइड। तो ये आइसो वर्ड बता रहा है कि आयोडीन फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, अब सेकेंड कार्बन पे है। यहाँ नॉर्मल वर्ड बता रहा था कि आयोडीन फर्स्ट कार्बन पे है, आइसो वर्ड बता रहा है कि आयोडीन फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सेकेंड कार्बन पे है। तो इसे देख लीजिए, दोनों सेम, बोथ आर द सेम कंपाउंड, दोनों सेम कंपाउंड है, प्रोपिल आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एन प्रोपिल लिखने का मतलब है कि ऑल द कार्बन आर स्ट्रेट फॉर्म एंड आयोडीन में अटैच, एंड आइसोप्रोपिल लिखने का मतलब है कि ऑल द कार्बन्स आर इन दिस वे एंड आयोडीन इज अटैच एट this type of carbon in which that carbon is surrounded by 2 carbon and 1 substituent। now इसका नाम तो आपको बता दिया गया कि दिस इज I1 आयोडोप्रोपेन। नाउ व्हाट विल बी इट्स नेम? तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द हेलोजन इज नियरेस्ट वन। सो नंबरिंग इधर से कर लीजिए 1 2 3, इट्स योर चॉइस, या तो इधर से कर लीजिए क्योंकि दोनों साइड से सेम आएगा। सो नाउ व्हाट विल बी इट्स नेम? नाउ इन दिस आयोडो इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, सो इट विल बी 2 आयोडो। ये क्या हो जाएगा? 2 आयोडो एंड प्रोपेन, 2 iodopropane। So its name will be 2 iodopropane। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 iodopropane। So what is difference? C, यही चीज आपको समझना है कि N प्रोपिल, ये भी प्रोपिल आयोडाइड है, दिस इज आल्सो प्रोपिल आयोडाइड, बट व्हाट इज डिफरेंस इफ इट विल राइट N प्रोपिल आयोडाइड एंड इफ इट विल राइट आइसोप्रोपिल आयोडाइड। एन प्रोपिल आयोडाइड में फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन जा रहा है और आइसोप्रोपिल आयोडाइड पे सेकंड पोजीशन पे आयोडीन जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, दैट इज एन ब्यूटिल। देखिए अब इसमें एन ब्यूटिल लिखा है। ब्यूटिल मींस हाउ मेनी कार्बन? 4 कार्बन। और एन का मतलब क्या बताए थे? स्ट्रेट चेन। एन का मतलब स्ट्रेट चेन मींस ऑल द 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन मैनर, एंड क्लोराइड का पोजीशन नहीं दिया है और एन लगा है, मतलब क्लोराइड इज एट द फर्स्ट। क्लोराइड चाहे इधर से फर्स्ट लगा दीजिए, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, किसी एक साइड से फर्स्ट कार्बन पे, फ्रॉम वेयर द नंबरिंग विल स्टार्ट। नाउ इट्स नेम विल बी 1 क्लोरो, एक नंबर पे क्लोरो है, एंड ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इट्स नेम विल बी 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट इज हियर, देखिए इसमें भी सेम नाम है, नॉर्मल एंड आइसो केवल डिफरेंट है। ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर भी है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो ब्यूटिल क्लोराइड? तो ब्यूटिल मींस 4 कार्बन, 4 कार्बन। नाउ आइसो वर्ड इज, आपको दो तरीका बताया गया था, आइदर एनी वन कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन और 2 कार्बन एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रोपिल में तो 3 ही कार्बन था, बट हियर इट इज द पॉसिबिलिटी कि 4 कार्बन है, सो 1 कार्बन कैन बी सराउंडेड बाय 3 कार्बन। एक कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड हो सकता है। तो इस तरीके से बनाएंगे। 4 कार्बन आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन टोटल है। द कंपाउंड इज कंटेनिंग 4 कार्बन, सो इट इज ब्यूटिल। अब इस ब्यूटिल में आइसो लगा है, सो 1 कार्बन विल बी सराउंडेड बाय 3 कार्बन। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है। अब आया क्लोराइड। क्लोराइड मीन्स क्लोराइड का पोजीशन फिक्स नहीं है कि क्लोराइड कहाँ पर है, where the chloride is present, so it means chloride will be at the first carbon, so either from this side, इस साइड से फर्स्ट कार्बन पे लगा दीजिए, या तो सॉरी आई नहीं Cl, या तो इस साइड से फर्स्ट कार्बन पे लगा दीजिए,
या तो इस साइड से फर्स्ट कार्बन पे, किसी भी साइड से। व्हाई आई एम सेइंग एनी साइड, क्योंकि इसमें बोथ द साइड हैविंग सेम नंबरिंग, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है। इफ नंबरिंग विल बी डिफरेंट तो वी विल अटैच दैट साइड फ्रॉम वेयर इट कम्स नियरेस्ट पोजीशन। सो जिधर भी लगाएंगे नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन। नाउ मेन चेन विल बी दिस स्ट्रेट चेन, मेन चेन ये हो जाएगा। सो मेन चेन इज नाउ 3 कार्बन and at the first carbon fluoro is present, so 1 fluoro. At the second carbon side chain methyl is present, 2 methyl, and 3 carbon chain is there, propane, 1 fluoro, 2 methyl, propane, 1 fluoro, 2 methyl, propane, 1 fluoro, 2 methyl, propane. Now see the name, क्या नाम लिखा हुआ है? 1 fluoro, 2 methyl, propane. Now see, बोथ आर ब्यूटिल क्लोराइड, दोनों ब्यूटिल क्लोराइड है, लेकिन नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब है कि ऑल आर अटैच इन स्ट्रेट चेन फॉर्म, सो इट्स नेम इज 1 chlorobutane. And another is isobutyl chloride, it means 1 carbon is surrounded by 3 carbon, so that's why its name is 1 chloro 2 methyl propane. Now next compound is pentyl. अगला दो एग्जांपल जो है वो पेंटिल का है। दिस इज आल्सो पेंटिल क्लोराइड, दिस इज आल्सो पेंटिल क्लोराइड, बट इट कंटेन द 2 वर्ड। इस वर्ड की मीनिंग समझिएगा, इस वर्ड की मीनिंग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम इंफॉर्मेशन होता है। वन इज टर्ड, टर्ड का मतलब टर्सियरी, टर्सियरी मतलब 3rd डिग्री। टर्ड इज द शॉर्ट फॉर्म, इट्स फुल फॉर्म इज टर्सियरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टर्सियरी होता है और 3rd डिग्री करते हैं, ठीक है। एंड न्यू तो नॉर्मल, आइसो और न्यू में 3rd कंडीशन आती है न्यू। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, एंड न्यू का मतलब है 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। अभी हम देखेंगे इसको कैसे। सो इसके लिए पहले आया कि डिग्री क्या होता है। So in class 11th, sir has informed you कि on the basis of degree, degree के basis पे carbon is of 4 types. Carbon 4 type का था। I am saying carbon on the basis of degree, carbon present in any organic compound is of 4 type. किसी organic compound में जो carbon present होता है that is of 4 type, वो 4 type का होता है, ठीक है। Like ठीक है, दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन चेन। नाउ इन दिस इफ आई विल आस्क कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, आप सब लोगों ने ये किया होगा 11th में, कार्बन की डिग्री क्या है, विच टाइप ऑफ कार्बन इज दैट। तो कार्बन डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, 3rd डिग्री कार्बन और टर्सियरी कार्बन, and 4th degree carbon or quaternary carbon. First degree carbon or primary carbon, second degree carbon or secondary carbon, 3rd degree carbon or tertiary carbon, and 4th degree carbon or quaternary carbon. ये 4 होता है। Now question is here कि किस कार्बन की डिग्री क्या है, कैसे पहचानेगा, हाउ वी विल आइडेंटिफाई। तो क्लास 11 में आपको बताया गया होगा कि the number of carbon directly attached to any carbon, किसी कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्ट अटैच होते हैं बॉन्ड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ठीक है, उसी को इसकी डिग्री कहते हैं। तो इफ आई विल आस्क दिस कार्बन, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है, एक कार्बन केवल, सो इट्स डिग्री इज फर्स्ट डिग्री और दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। अगर Your voice is coming slow. now
It is clear or Now slow? it is clear. Okay, thank you. Okay, thank you. So now the again this carbon is first degree carbon because it is attached with one carbon, and this carbon is second degree carbon because it is attached with two carbon, left side and right side, one left side, one right side. This carbon is third degree carbon because it is attached with three carbon, one left side, one right side, one upper. This carbon is fourth degree carbon because it is attached by four carbon, left side, right side, upper and lower. This carbon is second degree carbon because it is attached with two carbon, left and right. This carbon is first degree carbon because it is attached just one carbon, that is right side. This carbon is also 1 degree carbon because it is attached just one carbon, that is below 1. And this carbon is again first degree carbon because it is attached with one carbon, that is above 1. So by this we will find a degree कि किसकी डिग्री क्या है. So tert जो condition बता रहा है, that is degree of carbon, that is tertiary carbon. So voice is clear? Voice is clear or any problem? Clear. Okay, thank you. So now see here, pentyl chloride. Pentyl chloride. The pentyl word. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. खाते हैं नहीं क्या किया जाएगा मास्टर साहब आवाज ना हो Sobe. Sorry everyone. This time my voice is clear or not? Please anyone tell me. Yes, sir. Clear. Clear, sir. My voice is clear. Actually, my Clear, sir. Yes, sir. screen is Clear. searching network. Okay, so I need to share my screen once again. Now you can see my screen. Please tell me, are you able to see my screen? यस मास्टर यस सर So, who is there, Master Saab saying? So okay, so we are discussing about the pentyl chloride. Pentyl chloride. So pentyl chloride, pentyl is saying कि 5 carbon chain. Pentyl बता रहा है 5 carbon की chain है. And tert is saying third degree carbon, मतलब उसमें Piyush, are you there? Piyush, Yes, sir. thank you Piyush, thank you Piyush. I thought कि again something happened in network. So tert is saying कि any one carbon is third degree carbon. ठीक है, tert word जहां लगा, remember this, any one carbon is third degree carbon in the chain, and the substituent will be attached at that carbon.
सब्स्टिट्यूएंट उसी कार्बन पे लगा रहेगा. इफ टर्ट वर्ड विल कम, it means any one carbon is third degree carbon and substituent will be attached at that carbon. Substituent उसी कार्बन पर लगा रहेगा. Remember this. So tert का मीनिंग याद कीजिएगा. What is the meaning of tert? What is tert representing here? Tert means tertiary or third degree. It is representing that any one carbon in the chain is third degree carbon and at that carbon the substituent is present. So tert pentyl chloride. So it means 5 carbon chain in which any one carbon is third degree carbon. तो ये 5 कार्बन की चेन हो गई. और जब नंबरिंग नहीं दिया होता है देन सेकेंड कार्बन को ही हम मानते हैं कि कहाँ पर होगा, सेकेंड कार्बन पे. सो यू कैन सी कि सेकेंड कार्बन इज अटैच विथ 3 carbon, so it is third degree carbon. Now where the chlorine is present, chlorine will be present at that same carbon, third degree carbon. लेफ्ट राइट कहीं पे नहीं, थर्ड डिग्री कार्बन. अगर टर्ट वर्ड आया तो इट मींस एनी वन कार्बन इज थर्ड डिग्री कार्बन एंड द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट दैट कार्बन. और सब्स्टिट्यूएंट उसी कार्बन पर प्रेजेंट होगा. दिस इज द टू information which is given by the word tert. Tert मतलब third degree or tertiary. So after reading the tert pentyl chloride, I had drawn the structure that pentyl is 5 carbon, tert means one carbon is third degree, and that carbon contain the chlorine. So this structure will comes in front of you. Now we will write the IUPAC name. For that numbering will start from that side, from where the substituent will present at the nearest carbon, that is 3 and 4. Now what will be the name? So second पे chloro, second is CH3, that is methyl. तो second पे दो substituent है, एक chloro एक methyl है. So 2 chloro 2 methyl and mean carbon chain is 4 carbon butane. That's why its name is written here 2 chloro 2 methyl butane. इसका मतलब हो गया 2 chloro 2 methyl butane. Now see, pentyl chloride is here also. ये भी 5 कार्बन की चेन है, क्लोरीन अटैच है, बट इट्स वर्ड इज नियो. और नियो वर्ड की मीनिंग होती है कि एनी वन कार्बन इन द चेन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन. एनी वन कार्बन इन द चेन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन, दैट इज नियो. तो 5 कार्बन की कंपाउंड है, 5 कार्बन आर देयर ऑन स्क्रीन यू कैन सी. तो इसको हमको ऐसे अरेंज करना है कि एक कार्बन 4 से सराउंडेड हो, बाकी जो बचा वो स्ट्रेट जाएगा. तो यहाँ पे टोटल 5 है ही और एक को 4 से सराउंड करते, टोटल बस यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसके आगे कुछ नहीं. Now where the chlorine is present? Now chlorine will be present at any terminal carbon. क्लोरीन किसी टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होगा, या तो इस पर या तो इस पर या तो इस पर या तो इस पर, 4 में से किसी एक पर. सेंटर पे नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि कार्बन वैलेंसी इज ओनली 4. कार्बन कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड और कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं चारों साइड. सो वो कार्बन अब सेंटर कार्बन जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता. सो क्लोरीन विल बी प्रेजेंट एट एनी साइड कार्बन. किसी साइड कार्बन पे क्लोरीन आप लगा दीजिए. नाउ नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन. उसी कार्बन से नंबरिंग आपकी हो जाएगी. नाउ मीनिंग, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो हो गया. सेकेंड कार्बन पे 1 मेथिल इज डाउनवर्ड, 1 मेथिल इज अपवर्ड. सो 2 2 डाइमेथिल, 1 क्लोरो 2 2. सेकेंड नंबर पे 2 है, डाई इसलिए यूज किया गया, मिथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई 2 2 डाइमिथाइल and 3 carbon chain is there, mother chain is of 3 carbon. So propane, 1 chloro 2 2 dimethyl propane, 1 chloro 2 2 dimethyl propane, 1 chloro 2 2 dimethyl propane. Its IUPAC name is 1 chloro 2 2 dimethyl propane. So this is about the IUPAC name की आपको दिया रहेगा. हम नॉट सेइंग कि कॉमन नेम ही दिया रहे, हो सकता है फार्मूला लिख करके दिया रहे. सो फार्मूला लिख करके दिया रहा तो दैट विल बी इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा. लेकिन अगर कॉमन नेम दिया रहेगा देन हाउ यू विल ड्रॉ द फार्मूला टू चेक द IUPAC नेम, दैट इज आई हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ सी, आपको ये पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा दिस वन, एंड आफ्टर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ योर NCERT book. Formula is given and names are given here. Out of these
6, 4, 5, 6 is slightly complicated. That's why its structure is given here in this photograph. So if third, fourth, sixth have any confusion, you can see in this photograph कि वो कैसे बनाया है और कैसे place किया है. So your today's work is here कि definition of haloalkane haloarine समझ लीजिए, IUPAC name कैसे लिखना है ये समझ लीजिए, what is the meaning of normal, iso, neo, tertiary क्या meaning है, और यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह आएगा, then how you will write the IUPAC name. Any confusion is there, structure is also given. After that if confusion will be there, इसके बाद भी अगर कोई confusion होता है, then please ask me tomorrow कि सर ये वाला क्वेश्चन इस स्लाइड में, दिस इज स्लाइड नंबर 9, इसके पहले स्लाइड नंबर 8, सर इसमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, वट एवर इज द क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम है तो, एंड इफ क्लियर देन आपको